to be important for you to understand कि ये test होगा. अब I'll come to the question part once again. Just hold on. Okay. Now the most important thing, ये जो test होगा, this test is going to be there will be 12 to 15 questions in this test. 12 से 13 questions होंगे. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे, आई एम गोइंग टू गिव यू 1.5 minutes टू सॉल्व द आंसर्स. आप इसका आंसर अभी नहीं लिखोगे. यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दोज आंसर्स ऑन इन द चैट बॉक्स. यू आर ओनली गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक कि इसका आंसर क्या है. आफ्टर सॉल्विंग ऑल द आंसर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन. आपको हर क्वेश्चन पे 1.5 मिनट मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट 1.5 minutes. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. 30 सेकंड्स पहले मिलेगा और उसके बाद टाइमर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, टाइमर स्टार्ट होगा रेड कलर का. जो लास्ट मिनट आपका वो टाइमर आपको बताएगा कि अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्लीज राइट योर आंसर्स इन योर नोटबुक. पैराग्राफ नीचे है, क्वेश्चन ऊपर है. आई होप यू आर ऑल फाइन. यस और नो? गिव मी द आंसर इन योर चैट बॉक्स. आर यू रेडी फॉर द टेस्ट एवरीबॉडी? पैराग्राफ इज गोइंग टू बी एट द नीचे पैराग्राफ है, ऊपर क्वेश्चन है. क्लियर? Okay, fine, great. Let us see. Your time starts now. Please write your answers in your notebook. I don't want you to share the answers. Okay. Time is up. Let's move on to the next question. You can see timer on the right hand side. Top में दिख रहा है. This is the last minute you have got.
Time up.
Question number 7. You are getting 1.5 minutes per question. લખને કે વી આર ટ્રાઇંગ અહીંયા તમે હા પાડીએ જ છે ધ્રુવલ અહીંયા તમે હા પાડીએ જ છે પણ નથી તમે એન્ટર થઈ શકતા સર ઇઝ એડમિટિંગ યુ લાઈક એનીથિંગ Sir is admitting you. Sir is admitting you. વાત हाँ काटो। हाँ कि सर को कब के 1 बजे से आपका कोई वहाँ पे कनेक्शन का इश्यू लग रहा है लकी करना बोल दो। सती अरे एक्चुअली एक मिनट सर सुनिए मुझे मैंने सर ने इसलिए तो मुझे बोला है सर काफी टाइम पे ऐसे आपको एडमिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कनेक्शन इशू है आपका एडमिट नहीं होता है ये सही बात है ये अभी चल ही रहा है लेक्चर और सभी लोग तो ले रहे हैं मगर आपका सर ने इसलिए मुझे बोला था आप लोग कॉल करो तो वो एडमिट कितनी ही दफा कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है एक बार ऐसा हो तो जरा बंद करके वापस से चालू करो पता नहीं आपका काफी दफा गया है मगर आपका हो नहीं रहा है बाकी सब जो है चल ही रहा है हाँ एक बार फिर से
Okay, fine. The test is over now. So how was the experience? Did you enjoy giving the test, everybody? Yes or no? I thought of taking this test for the very first time. I was not knowing that, how this is going to happen. But the timer was not working actually properly. The problem was that, a lot of people were trying to admit inside. So once I click on that timer part, it becomes very difficult. Anyway, so I hope it was according. I tried to give you 1.5 minutes per question. There may be 10-15 seconds here and there because of the descriptions that I had, but we shall now try to check out the answers. Great. Okay, so let's take the first question. I'm reading the question first. The building is possibly the most famous of its type in the world. What is the answer? What's the answer of first one? True, false, not given. Yes, guys, what's the answer? Okay, answer of this is going to be true. The answer of this is going to be true. The only reason is that it is absolutely mentioned over here that it is almost impossible to write of the arts in the Australia without mentioning the building that first put the country firmly on the world cultural map, the Sydney Opera House. So it is, and I'm reading the last 4 lines. Uh, it is not only the most well-known Australian building in the world, but perhaps the most famous design of any modern building anywhere. So the answer of this is going to be true. Is it getting clear? The first is going to be true. Let's go for the second one. Okay. The Opera House drew world attention. What's the answer of this? Second false. Let us see. The Opera House drew world attention to the arts of Australia. Okay. So the first line itself is the answer. It is almost impossible to write of the arts in Australia without mentioning the building that first put the country firmly on the world cultural map. That gives the answer as well. Question ये कहता है कि Opera House drew world attention to okay to the arts in Australia. लोगों का ध्यान बटाया ऑस्ट्रेलिया ने, ओपेरा हाउस ने, कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है ऑफ आर्ट्स. और वही तो चीज पहली 3 लाइन में मेंशन की गई है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू राइट ऑफ द आर्ट्स. मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा आर्ट्स को नजरअंदाज करना ऑस्ट्रेलिया में से ओपेरा हाउस को मेंशन किए बगैर. सो एक ओपेरा हाउस एक ऐसा हाउस है विच इज बेसिकली made the name of Australia in the world map as far as arts is concerned. So that is what is mentioned in the first 3 lines. It is almost impossible to write of the arts in Australia without mentioning करे बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और आर्ट्स की बात करें और हम सिडनी ओपेरा हाउस का नाम न ले. So answer of second is also going to be true. Is it getting clear? Let's go to the third one. Now this is very important. Now I want everybody कि मुझे इसका आंसर बताइए. What is the answer of this, everybody? This is very good. I would like to pay attention to this. I want answers from everybody. I don't know what people are not doing. I want answers from everybody. Yeah, many of you have given not given. Very nice. Yes, not given. Great. Most of you have given 1 or 2 are there for false as well. Okay, not given. Okay. So let us try to understand, bifurcate the question. A question hai Utzon. Utzon is the name of the architect who basically designed Sydney Opera House. So question में लिखा है कि Sydney, just hold on. Yeah, question में लिखा है Sydney Utzon designed the roof to look like the sails of the sailing ship. Utzon ने रूफ को ऐसे डिजाइन किया ताकि ऐसा लगे कि सेलिंग शिप का सेल्स है. मतलब उसके सेलिंग शिप के जो होते हैं व्हाइट कलर के शिप्स जो होते हैं वो उसने ऐसा डिजाइन किया है उसने डिजाइन करते वक्त. नाउ आई रीड द पैराग्राफ. इट्स डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक एंड हाईली ओरिजिनल शेप हैज बीन लाइकन्ड टू एवरीथिंग from the sails of a sailing ship to broken axles. When I did true false not given in the beginning, I explained that it will be a fatal mistake, dangerous mistake to only concentrate on the keywords. Keywords को नजरअंदाज नहीं करना है.
but just to concentrate on the keywords is not going to get the right answer. So very important कि आप ये देखिए for example कि for instance यहाँ पे है कि likened to everything. likened का मतलब लोगों ने उसको अलग अलग नजरिए से देखा. For example, if you have gone there, तो उसने सिडनी ओपेरा हाउस देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये तो सर सेल्स ऑफ द सेलिंग शिप लग रहा है. तो आपका कोई दूसरा दोस्त गया, उसने देखा सिडनी ओपेरा हाउस को, उसको ऐसा लगा सर अंडे का टूटा हुआ, जो अंडे टूटे हुए होते हैं ऊपर से, ऐसा लगता है, जैसे कि लिखा है थर्ड लाइन में ब्रोकन एक्सेल्स. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से सिडनी ओपेरा हाउस को देखा, तो अलग अलग डेफिनेशन बनी. लेकिन कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि उर्जोन ने डिजाइन ऐसा किया था ताकि वो ऐसा लगे कि सेल्स ऑफ द सेलिंग शिप है. So the answer of this is going to be not given. क्या आएगा इसका आंसर? Not given. Clear? Okay. Now let us go for the fourth one. Okay. So, yeah, fourth one. A few people claim that it is a major architectural work. यहाँ पे काफी लोगों ने गलती की होगी. I want answers from all of you. What is the answer of fourth one? True. Okay. Okay, false. Okay, false. Any other answers? लोगों ने मेंशन नहीं किया, काफी 4-5 लोगों के आंसर्स आए. व्हाट आर द आंसर्स ऑफ अदर्स? आपको you don't need to keep it keep it blank, you at least need to give some answers. Okay, ज्यादातर लोगों के ट्रू आ रहे हैं, ठीक है, नॉट गिवन नहीं आ रहा है. सो देयर आर टू आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, नाउ दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू अगेन कीवर्ड्स का आपने मैचिंग किया, क्योंकि आपने क्या किया, व्हाट यू डिड इज समथिंग लाइक दिस. देखिए हम लोग छोटा सा इसको बाइफर्केशन करते हैं. आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस फ्यू, और आपने यहाँ पे देख लिया फ्यू, और बड़ी आसानी से आपने ट्रू कर दिया. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन ये कहता है कि फ्यू पीपल क्लेम दैट इट इज अ मेजर आर्किटेक्चरल वर्क. इसका मतलब ये हुआ बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि ये मेजर आर्किटेक्चरल वर्क है. आई रिपीट, इन क्वेश्चन 4 इट इज मेंशन्ड बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू putting these things what is mentioned in the question. I'm not trying to add my ideas. I'm just trying to bifurcate the question. काफी बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि ये मेजर आर्किटेक्चरल वर्क है, मतलब कि बेहतरीन काम है, ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं. Now if you read the third line, it is mentioned, but few would argue with the claim that Sydney Opera House is a major contribution to the world architecture. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम लोग ये आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू मतलब उसके अपोज करते हैं कि ये सिडनी ओपेरा हाउस मेजर कंट्रीब्यूशन वर्क नहीं है. आई रिपीट, क्वेश्चन में ऐसा है कि बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि ये मेजर आर्किटेक्चरल वर्क है, बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि वो मेजर आर्किटेक्चरल वर्क है. पैराग्राफ में दिया है बहुत कम लोग ये आर्ग्यू करते हैं, मतलब अपोज करते हैं कि वो मेजर आर्किटेक्चरल वर्क है. तो दैट मीन्स द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है is exactly opposite to the information given in the passage. Answer of this is going to be false. Is it getting clear or not? आपने सिर्फ और सिर्फ few देख लिया और आंसर को क्लियर वो कर दिया, ट्रू कर दिया. This is not the right answer. Answer is going to be false. Clear? Okay. Yeah. Somebody raised a hand. Yeah. Okay. Fine. So I'll check out, probably if you want, because, we'll be getting late after otherwise. Let me go for the fifth one. Okay. Okay. According to the author, Sydney is a quiet and graceful city. Sydney is a quiet and graceful city. What is the answer of this one? Yes, very simple है, बहुत छोटा है. What is the answer of this one? Everybody, मैं जब बोलूँ क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, तो पता तो चले आप लोगों ने किया है कि नहीं. यस, फॉल्स है, फॉल्स है. ओके फाइन. सिडनी इज अ क्वाइट एंड अ ग्रेसफुल सिटी. ओके, okay. Now but if you look at the last, I'm looking at the fourth. Okay, set amidst the graceful splendor of Sydney Harbour, presiding like a queen over the bustle and briskness. Now what is the meaning of bustle and briskness? Bustle and briskness का मतलब होता है शहर की चहल पहल, मतलब एकदम एनर्जी वाला एटमॉस्फेयर, बहुत नॉइज आता है, उसको आप बोलोगे बसल एंड ब्रेसनेस ऑफ ए मॉडर्न सिटी.
मतलब ये कहना चाहता है कि सिडनी में काफी नॉइज है, काफी चहल पहल है, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड Sydney is a quiet and graceful city. That means the information of the question contradicts the information given in the paragraph. Answer is going to be false. The answer of fifth is going to be false. Let us go for the sixth one. Very nice. The cost of construction went more than 50 million pounds over budget. What is the answer of this? Yep. Yeah, what is the answer of this? Okay, so if you look at the answer, इसका आंसर क्या होगा? Let us see. False लिखा है, काफी लोगों ने true लिखा है, वही तो मजा है true false not given का. Okay, so question ये है कि cost of the construction went more than pound 50 million over budget. Now let me read the last 5 lines. I'm starting from here. I hope you can see my cursor. The building was originally expected to cost only 5.5 million pounds. So it was expected कि ये building जो है बन जाएगा 5.5 million pounds में. But it is given in the last line. The building cost 60 million pounds. मतलब it was thought कि building को हम लोग 5.5 million pounds में बना पाएंगे. But it took 60 million pounds to construct the building. मतलब सोचा था 5.5 में बन जाएगा, लेकिन बना 60 million pounds में. इसका मतलब ये हुआ if I subtract 5.5 from 60, it comes to be 54.5 million pounds. मतलब सोचा था कि 5.5 million pounds में बनेगा, लेकिन बन गया 60 million pounds में. मतलब कि उसका खर्चा तकरीबन 54.5 million pounds ज्यादा हुआ. तो वही तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेंट मोर देन 50 मिलियन पाउंड्स. मतलब कि जो सोचा था उससे 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्चा हुआ. वैसे देखा जाए तो 54.5, बट देन इट टुक 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्चा हुआ. सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. इज इट गेटिंग क्लियर? द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. सोचा था 5.5, बना 60 में, मतलब कि 50 मिलियन से ज्यादा का खर्चा हुआ जो बजट हमने सोचा था उससे. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. ओके, 7th, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड्सॉन नेवर रिटर्न्ड टू ऑस्ट्रेलिया सिंस to see the completed building. Yes, what's the answer of this? Everybody. Yes, very good, I'm getting answers from everybody, but still not many are participating. At least give your answer. Okay, ये भी बहुत अच्छा है. ये I don't know whether you recalled, आपने शायद रिकॉल किया होगा जब मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले जो 5 चीज सिखाई थी कि क्लेम करना और फैक्ट्स, उन दोनों में फर्क है. यहाँ पे लिखा है इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, वुड्सॉन नेवर रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया टू सी द कंप्लीटेड बिल्डिंग. मतलब वो कभी आया ही नहीं. ये क्वेश्चन है. बट इफ यू रीड द पैराग्राफ, लेट मी सी, या let me read this. I'm reading the 4th line. However, it was not in fact completed to its original specifications. Plans for much of the intended interior design of the building have only recently been discovered. Sadly, the state government of the day मतलब उस समय पे जो state government थी वो, that is what we call as state government of the day, interfered मतलब उसमें दखलंदाजी की with Woodson's plans because of concerns about the escalating cost. Escalating cost का मतलब cost बढ़ जाती है, उसको escalate करते हैं. Escalating का मतलब बढ़ती हुई cost. Though this was hardly surprising, मतलब ऐसा था Woodson ने जो डिजाइन किया था तो गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो उनको ऐसा लगा कि काफी कॉस्टिंग हो रही है. So government did not go about with the Woodson plans. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए और इसी के कारण Woodson को गुस्सा आ गया. और उस यहाँ पे लिखा, if I read the 4th last line, Woodson left the country before completing the project and in a fit of anger vowed never to return. क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं की तो Woodson ने ऐसा बड़ी गुस्से में आ गया. फीट ऑफ एंगर का मतलब होता है काफी गुस्से में आना. वाउड का मतलब होता है शपथ लेना. सो जब Woodson ने देखा कि अपने हिसाब से उसका काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, देन व्हाट इट डिड वाज इट डिसाइडेड टू लीव द कंट्री ऑस्ट्रेलिया. और उसने डिसाइड किया कि उसने शपथ ली कि वो वापस कभी नहीं आएगा.
नाउ दिस इज वेयर स्टूडेंट्स वुड मेक द मिस्टेक. तो काफी लोग उसको ये ट्रू कह देंगे बिकॉज उर्जोन नेवर रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया टू सी द कंप्लीटेड बिल्डिंग. बट उसने शपथ ली थी कि मैं वापस नहीं आऊंगा. कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि वो वापस आया कि नहीं आया. देयर इज नो फैक्ट ऑफ दैट एंड हेंस द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. यही चीज आपको याद रखनी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. किसी ने दावा किया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने शपथ ली, और फैक्ट में ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इसने ऐसा किया, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉट गिवन. बिकॉज दिस, इसका, क्योंकि हम लोग इसको फॉल्स भी नहीं कह सकते, ट्रू भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते वो वापस आया, और ये भी नहीं कह सकते कि वो वापस नहीं आया. पैराग्राफ में मेरे पास इंफॉर्मेशन, उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो वापस आया कि नहीं आया. Answer of this is therefore going to be not given. Let us go for the eighth one. Simple सा है. There is only one theater within the complex. लेकिन अगर आप देखेंगे fourth line, the rooms and other facilities for the various theaters. Various theaters, ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी जरूरी है. Various theaters का मतलब होता है बहुत सारे theaters है, और क्वेश्चन में लिखा है there is only one theater within the complex, जबकि पैराग्राफ में लिखा है बहुत सारे theaters है. आंसर ऑफ दिस इज देयरफॉर गोइंग टू बी फॉल्स. फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा, नॉट गिवन नहीं आएगा. फॉल्स लिखा तो है वेरियस थिएटर्स विद इन द कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे थिएटर्स है, और यहाँ पे लिखा है देयर इज ओनली वन थिएटर. ओनली शब्द आता है तो आपको बिल्कुल बारीकाई से देखना पड़ेगा क्या है. आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, बिकॉज पैराग्राफ क्वेश्चन में लिखिए फैक्ट्स है, फैक्ट्स में लिखा है कि बहुत सारे थिएटर्स है, सो यू डोंट नीड टू गो फर्दर. ओके. Ninth one, the government was concerned about some artist complaints. What is the answer of this? फटाफट आंसर ऑफ दिस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एटलीस्ट चलो अच्छा है कि आप लोगों को पता चल रहा है. आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. द रीजन ऑफ दिस इज नॉट गिवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि काफी आर्टिस्ट, यहाँ पे लिखा है, आई एम रीडिंग द फिफ्थ लाइन, एंड सम आर्टिस्ट हैव कंप्लेन्ड बिटरली अबाउट देम एवर सिंस. कंप्लेंट की थी, बिटरली मतलब बड़ी कड़वाहट के साथ उन्होंने कंप्लेन की थी. लेकिन गवर्नमेंट इस कंप्लेंट्स के साथ कंसर्न थी कि नहीं थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. नाइन्थ का आंसर होगा इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. चलिए, ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट गिव बेटर परफॉर्मेंसेस इन द ओपेरा हाउस. द आंसर, 10th one. Yes guys, yes, the answer of 10th one. फटाफट. मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग ट्रू और फॉल्स कैसे दे रहे हो. कहाँ लिखा है बेटर परफॉर्मेंस दिया है, मुझे बताएंगे आप? Where it is mentioned? I really do not understand that. How come you are giving true or false? Where कहाँ लिखा है? Australian artists give better performances in the opera house. मैं जानना चाहूंगा कहाँ पे आपको दिख गया, मुझे नहीं दिख रहा है. Yes, there is nowhere it is mentioned. कहीं पे भी नहीं दिया है कि ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट आर गिविंग बेटर परफॉर्मेंसेज इन द बेटर हाउस. परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहाँ लिखा है? प्लीज मार्किंग मत कीजिए, आपसे विनती है कि प्लीज वहां पे मार्किंग मत कीजिए. आप मुझे कह सकते हैं कौन सी लाइन में, बट यू डोंट नीड टू मार्क बिकॉज इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंसेस फॉर द अदर्स. यस, नॉट गिवन. इन द लास्ट लाइन कहाँ लिखा है कि इन द मैनी वर्ल्ड क्लास, अरे भाई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है नेल्सन जी कि ये लोग ज्यादा अच्छा, बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है. कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दैट मींस यू आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपेरा आर्टिस्ट विद अदर्स. कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि वो लोग ब्राजीलियन आर्टिस्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं? वो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. ओके. Frogs are disappearing only from city areas. We are getting late. It is almost 1:55. So where the last, so chances, I'll read the first three lines. What is the answer of this? Okay. Okay. The answer of this यहाँ पे लिखा है, when was the last time you saw a frog? Chances are there that if you live in a city you have not seen one for some time. इसका मतलब ये है कि आपने कहा, ये गया है कि कहाँ आपने लास्ट टाइम फ्रॉग को कहाँ देखा, और चांसेस ये है कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपने शायद किस फ्रॉग को देखा ही नहीं होगा. लेकिन शहर में तो ठीक है आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन अब तीसरी लाइन में ये लिखा है कि इवन इन वेट एरियाज वन स्कीमिंग विथ फ्रॉग्स एंड टॉड्स. वेट एरियाज मतलब गांव. It is becoming less and less easy to find those slimy, hopping and sometimes poisonous members of the animal kingdom. मतलब ये ऐसी चीज नहीं रह गई
कि सिर्फ सिटी में लोग डिसअपियर हो रहे हैं, ये लोग डिसअपियर मतलब गांव में भी हो रहे हैं, दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। इज इट गेटिंग क्लियर? ये सिर्फ ये ऐसा फिनोमिनन है, सिर्फ शहर तक पर्याप्त ये सीमित नहीं है। फ्रॉग्स आर ऑल्सो गेटिंग वेनिस्ड फ्रॉम द एरिया सच एज, गांव में से भी वो लोग डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब इसका आंसर जो होगा इट इज गोइंग टू बी ट्रू। ओके, then frogs and toads are usually poisonous. What's the answer of this, everybody? Yes, frogs and toads are usually poisonous. Yes, so let us get, yeah, what is the answer? Very good. Okay, most of you got the right answer. Okay, false. Okay, so frogs and toads मतलब frogs का जो बच्चा होता है उसको आप toads कहेंगे. Okay, so when was the last time you saw the frog? Chances are, लेकिन आप अगर देखेंगे, yeah, I'm reading the fourth line. It is becoming less and less easy to find those slimy, hopping and sometimes poisonous. Sometimes, this is very important. Sometimes का मतलब बहुत rare. तो अगर I would not like to put that into percentage, मतलब लेकिन अगर 100 लोग हैं, 100 frogs है, तो उस पे बहुत कम मात्रा में frogs जो होता है वो poisonous होते हैं. But if you look at the question, it is mentioned frogs and toads are usually poisonous. Usually मतलब बहुत मात्रा में, usually मतलब अगर 100 की बात करें, see again percentage में बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं परसेंटेज कहूंगा. समटाइम्स का मतलब हुआ 100 में से 20% और यूजुअली का मतलब हुआ 100 में से 80%. So answer is contradictory and hence the answer is going to be false. Last one, chaliye. What is the answer of last one? Okay, so okay, so लिखा है कि biologists are unable to explain why frogs are dying. Biologists are unable to explain why frogs are dying. जैसे कि पैराग्राफ ये था कि frogs ना सिर्फ सिटी एरियाज में बल्कि वेट एरियाज मतलब गांव में भी कम हो रहे हैं और बायोलॉजिस्ट ये समझा नहीं पा रहे. बायोलॉजिस्ट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो अनेबल टू एक्सप्लेन मतलब समझा नहीं पा रहे कि ये फ्रॉग्स क्यों मर रहे हैं. तो देयर इज, मैंने बताया था आपको कि पैराफ्रेजिंग भी आपको देखना पड़ेगा. कहीं पे भी डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा, बट इफ यू लुक एट द लास्ट फिफ्थ लास्ट लाइन, biologists are at loss. Loss का मतलब it's an adverbial phrase, it's a phrase. At a loss का मतलब होता है, loss to explain का मतलब होता है कि उनके पास कोई कारण नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं है कि वो समझा पाए कि ये डिमाइस का मतलब, ये डिमाइस का मतलब डेथ होता है. सो सी इन्होंने पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डाइंग, क्वेश्चन में डाइंग का इस्तेमाल किया है, एंड इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन्ड डिमाइस. तो वो लोग तो सेट हो रहा है, बट बायोलॉजिस्ट ये समझा नहीं पा रहे. दैट इज ऑल्सो मेंशन, द सेम इज मेंशन इन द पैराग्राफ कि बायोलॉजिस्ट समझा नहीं पा रहे कि ये फ्रॉग्स मर क्यों रहे हैं. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू. क्लियर और नॉट? So this is it, my dear friends. I hope you enjoyed doing this true false not given exercise. आप मुझे बताएं कि ऐसी टाइप की एक्सरसाइज हम रखें एग्जाम फॉर्मेट में? Yes or no? I did it for the very first time, so I thought of taking it again. I hope you have understood each and every question properly. इसको हम ज्यादा रखेंगे, we will do it more. क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लेक्चर्स तो लेते हैं, we take this type of lectures every time, but there is no टेस्ट दैट इज बेसिकली टेकन. सो अच्छा है कि फॉर एग्जांपल हाँ आपका स्कोर्स, दर्शन ने अपना स्कोर भी दिया, आपका स्कोर्स क्या आया? Shall not be able to explain individually now, but I just needed to know what's the score you got. Very good, very good. There is nothing to worry, scores कम आएंगे, टेंशन मत लीजिए, but if you follow properly, I am sure that you will be able to get a good score. Next time what I'll do is that I'll take, देखिए ऐसे समझाना और रीडिंग समझाना बहुत फर्क है. इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द ऐसे, बट इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द रीडिंग. तो उसी के कारण मैंने ये सोचा कि मैं रीडिंग लूंगा. I'll also take few more lectures of reading like this. I hope you've enjoyed. Next time next time I'm planning to take I'm planning to take headings लेंगे हम लोग. या सब लोगों को इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन, बट आई एक्सप्लेन इट अगेन. डोंट वरी. हम लोग यू कैन ऑलवेज गिव मी योर
suggestions in the chat box about the question that you probably might not be able to understand properly, I'll explain that to you personally. So there's nothing to worry, nothing to worry. और इसका recording भी होगा, so I'll share this recording to you people so you can go through it again. Anyway, thanks a lot. Thank you. Thanks all of you. Have a very nice and safe day. I hope you enjoyed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.